કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્ર માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈ બહેનોને આપણા દોસ્ત કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલના નમસ્કાર. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. કથા છે ભાઈ કથા છે ખેડૂતોની કથા છે. વ્યથા છે ભાઈ વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે. ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી. બેટે, હા, આપણે આ નવા વર્ષમાં કંઈક ફરવા જવાનું ગોઠવવું છે. એટલે હવે કંઈ જવાની ઈચ્છા જ નહીં થતી. ખબર નહીં, હવે તો કંઈ તહેવારોમાં મજા જ નહીં આવતી. પહેલાં જેવી છે મજા. કોઈ કોઈના ઘરે જતુંય નથી અને કોઈ કોઈના ઘરે આવતુંય નથી હવે તો. આપણે કોઈના ઘેર જવાની વાત કરી. પણ એકબીજાના ઘરે જઈએ, એકબીજાને મળીએ તો વધારે મજા આવે. એવું? હા, એકબીજાને ઘરે જઈએ, એકબીજાને ઘર મળીએ તો મજા આવે. સુખ દુઃખની વાતો કરીએ તો ફરક પડે ને, તો લાગે પણ ખરું એમ તહેવાર જેવું. અત્યારે તો બસ હરી ફરીને બધા રોડ પર નીકળી જાય છે ફરવા માટે. કોઈ કોઈના ઘરે સગેવાલે જતું જ નથી. પણ મીઠી એ ચેમ નહીં જતા ખબર છે? કારણ કે અત્યારે આ છે ને સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો આવી ગયો. સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં બધા છે ને દિવાળી હોય કે કોઈ નવું વરસ હોય એટલે વોટ્સએપથી મેસેજ મોકલી દે, હેપ્પી ન્યૂ યર, હેપ્પી દિવાળી, એટલે પત્યું. જોને મળ્યા હોય એમ આનંદ માણી લે. હા, એ બધી વાતો ઠીક છે, પણ મને તો એવું લાગે છે કે જેની પાસે વધારે પૈસો એને લોકો મળવા જાય એવું લાગે છે. પૈસો હોય ને મળવા જાય એમ? હા, એવું જ લાગે છે હવે. થી પૈસાવાળો હોય કે પૈસા વગરનો હોય, પ્રેમભાવ દેખીને લોકો એકબીજાને મળવા જાય. હું તો એવું કહું છું. હા, પ્રેમભાવ દેખીને એ વાત તો ઠીક છે, પણ હવે તો કેવું કે બધા મળવા જાય તો એકબીજાને સુખ દુઃખની તો વાત એક બાજુ રહે, પણ તમારા ઘરમાં આમ કરાવો, તમે આમ લાવો, પેલું લાવો, એવી જ વાતો હોય છે. બેન મીઠી, આપણા ગામડાને મેગાડી તો બધા આ નવા વર્ષમાં એકબીજાને મળે જ છે. હા, ગામડામાં તો હજુ મળે છે, પણ હવે તો ગામડામાં એવું થઈ ગયું છે. હા, એવું લાગે કે ઘણો છે ને મનમાં એવું લાગે કે પેલો આવશે તમારા ઘરમાં, આ ભૂલ કાઢશે કે આ વર્ષે તમે દિવાળી કલર ના કરાયો મકાનને, તમે નવી ગાડી ના લીધી, એ બધી વાતો કરશે. પણ એવું હોમેવાળાના મનમાં ના હોય. મીઠી તો ઘણા જાતે ને જાતે વિચાર નાના હોય છે, લોકો કહેશે જ મોઢા પર. એમ? હા, હવે તો ગામડામાં કહેશે, એવું કશું નહીં. કોકે જરાક કંઈક ભારે કપડાં લઈ આવ્યા હોય ને એમને બીજાના છોરા બિચારા સાદા કપડાં પહેર્યા હોય તોય કે કેમ તમે આ વખત કપડાં ના લાવ્યા, અમે તો આ મોટી સિટીમાંથી લાવ્યા. કેમ આ ફટાકડા તમે આટલા જ લાવ્યા, અમે તો આટલા બધા લાવ્યા, એવું બધું કહેશે. એમ? અને અમે તો બહાર જમવા ગયા હતા, તમે તો ઘરમાં જ બનાવીને ખાધું, એવું પણ કહે. ભાઈ, દુનિયાનું કોમ બોલવાનું છે અને આપણે આપણી રીતથી જીવવાનું છે. દરેકે પોતાની ત્રેવડ પ્રમાણે ચાલવાનું. પેલા ભાઈ મોટી ગાડી લાવે એટલે આપણે કે દેખાદેખી મોટી ગાડી નહીં લાવવાની. આપણે જરૂર હોય તો 2 પૈડાની ગાડી હોય તો 2 પૈડાની ફેરવવાની. એમાં મોટી ગાડી લાવવાની કોઈ જરૂર ખરી? અને બીજું કે માણસનું મગજ આખું અપસેટ થઈ જાય પછી. પણ અપસેટ થાય છે એનું એટલે અત્યારે આ દુનિયા એવી થઈ ગઈ છે ભાઈ. દુનિયાને જે કહેવું હોય એ કે, આપણે તો આપણી ચાદર જેટલા જ પગ લોબા કરવાના. ચોખ્ખી વાત છે કે આપણે આપણી કમાણી, આપણી આવક, આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે જીવનમાં આયોજન કરવાનું, ખર્ચા કરવાના. અને પહેલાં તો લોકો કેવું કે સામેથી એકબીજાને મળે તો આમ એટલો આમ આનંદમાં આવી જાય, ખુશ થઈ જાય. હવે તો ખાલી મળે તો એમ ખાલી કેવા ખાતર ઘરે આવજો એવું કે. એમ? હા, દેખી જાય એટલે ઘરે આવજો એવું કે. હા, તો જવાનું. પછી જઈએ તો તાળા મારીને બહાર ફરવા જતા રહ્યા હોય. તો પછી એવું પ્રેક્ટિકલી ખાલી કહ્યું હોય તો ત્યાં નહીં જવાનું. પણ મીઠી, આપણે તો રહ્યા ખેડૂત, આપણી જો ટાઈમ એ કહી છે તો કોઈને ઘેર મળવા જવાનું. પણ આ 9 વર્ષ એટલે મેં તો એમ કહ્યું કે આપણે કોઈ જગ્યાએ ફરવા જવું છે, કંઈ નવી જગ્યાએ. તો હું એમ કહું કે મારે મલેશિયા જવું છે, તમે લઈ જશો? મલેશિયામાં કોઈ આપણું હગું છે તો આપણે મલેશિયા જવાનું? ના, તો તમે કહ્યું એટલે મેં કહ્યું તમને.
હા તો આપણે દિલ્હી જઈએ બસ એમ નજીકમાં નજીક. આ દિલ્હી નજીક છે? હા હલો ભાઈ, દિલ્હી ઘણું દૂર છે. એક કૃષિ તીર્થ આવે છે. હા મેં જોયેલું છે. કૃષિ તીર્થ એટલે ખબર? હા કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર વેજલપુર. હા એ મેં જોયેલું છે. ખેડૂતોને કૃષિ તીર્થ કહે છે. ખેડૂતો માટેનું તીર્થ, જે જગ્યાએ ખેડૂતોને કંઈક આશીર્વાદ મળે, ખેતીને લગતું કંઈ જાણવા શીખવા મળે, એ ખેડૂતોનું કૃષિ તીર્થ કહેવાય. તો આપણે જતો છે ને એ કૃષિ તીર્થની પણ મુલાકાત કરીશું. તો આજે આપણે કૃષિ તીર્થ એવા કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાત લેવાની છે. પરંતુ એ મુલાકાત લઈએ એ પહેલાં એક સરસ મજાનું ગીત સાંભળીશું અને કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્રના મુખ્ય વડા ડૉક્ટર A.K. સિંઘની મૌલીન મુનશી સાહેબે લીધેલી મુલાકાત સાંભળીશું. કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ શ્રોતા મિત્રોને મૌલીન મુનશીના નમસ્કાર. મિત્રો, તમે ગોધરા કે પંચમહાલ આવો અને કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધનની મુલાકાત ન લો તો તમારી એ પ્રવાસ અધૂરો ગણાય. હું એટલા માટે આવું કહી રહ્યો છું કે ઘણા લોકોને એમ થાય કે અમે તો ખેડૂત નથી તો અમારે કેમ આની મુલાકાત લેવી. પણ તમે જુઓ કે 500, 500, 600 હેક્ટરમાં વિસ્તરેલું આ એમનું જે ફાર્મ હાઉસ હોય, હજારો આંબા હોય, અલગ અલગ જાતના ફ્રૂટ થતા હોય, જામફળ થતા હોય, જાંબુ થતા હોય અને એ બધું પણ પ્રાકૃતિક રીતે. તો આ બધું જ જે સંશોધન કરે છે અને જે ઉગાડે છે તે કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર. તો આજે મને બહુ આનંદ છે કે કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર જે છે એના કાર્યાલય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર A.K. સિંઘ સાહેબ આકાશવાણી FM ગોધરાના સ્ટુડિયોમાં છે ને આપણે એમની પાસેથી આ કેન્દ્રની प्रवृत्तियों विषय बात करीशू. डॉक्टर A.K. सिंह साहब, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी FM स्टूडियो में. सर, आप जहाँ से आते हैं केंद्रीय बागायत संशोधन केंद्र, आप उसके अध्यक्ष भी है, कार्यालय अध्यक्ष. तो इस केंद्र के बारे में हमारे किसान भाइयों को और श्रोताओं को बताएंगे. किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार. आज मैं आप लोगों के समक्ष केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र में किसान भाइयों के लिए, देश के लिए क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा. इस केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी और उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी भाई देसाई, उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए किया था कि 4 राज्यों के जो हमारे आदिवासी गरीब भाई हैं उनके जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना की गई थी. उसी को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र ने पिछले 40 साल से ज़्यादा सालों से लगभग ऐसे फलों पे काम किया है जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आंवला, बेर, बिलीपत्र, जामुन, महुआ, करौंदा, इमली, आपके यहाँ कोठा बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं, और सीताफल और फालसा और रायन जो गुजराती में बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में खिरनी कहते हैं, और उसके साथ साथ नींबू और ये जिसको जाम फल बोलते हैं गुआवा, उसके ऊपर संशोधन का कार्य विगत 40 सालों से ज़्यादा से हो रहा है. और मुझे किसान भाइयों आप लोगों को बताने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि इस केंद्र ने फल और साग भाजी में अब तक 30 से ज़्यादा प्रजातियों का विकास किया है. और इन प्रजातियों को विकास करने के बाद इस केंद्र तब से लेकर आज तक निरंतर प्रयासरत है कि जो सुधरी हुई प्रजातियां, चाहे आंवला की हो, गोमायसरिया, चाहे बेल की, तो यहाँ पे जो संशोधन का कार्य है मैं समझता हूँ कि अपने देश में इससे बढ़िया संशोधन का कार्य और कहीं पे नहीं हो रहा है. जी. बेल में हमारे पास 216 प्रकार के जनन द्रव्य हैं जो कि अपने देश के विभिन्न राज्यों से लाए गए हैं, जिसमें अभी तक कुल 6 प्रजातियों का विकास किया गया है. गोमायसी, थार दिव्य, थार नीलकंठ, थार सृष्टि, थार शिवांगी और थार प्रकृति, और ये प्रजातियां किसानों के प्रक्षेत्र तक पहुंच रही हैं. ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. और इन फलों में जो भी, चाहे आंवला हो, चाहे बिलीपत्र हो, चाहे जामुन हो, अगर इनको देखें तो आज की ज़रूरत क्या है. कोरोना पेंडेमिक में हम लोगों को जीवन को कितना प्रभावित किया अगर देखें तो आज के समय में हम सभी लोगों को सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है. और स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसे फल या साग भाजी का उपयोग करना है जिससे हमारी शरीर में
रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो जो भी इस बागायत केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र पर जो भी फलों की खेती होती है वो सारे फल हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। साथ ही साथ ये ऐसे फल हैं जिनको कि बिन पियत गुजराती में बोलते हैं, बिना पानी के उसको उगा सकते हैं। और अगर आप इन फलों को अपने प्रक्षेत्र पर या अपने घर के आसपास, अगर आपके घर के आसपास ज़मीन है तो एक पेड़ आंवले का, एक पेड़ बिली पत्र का, एक जामफल का, एक नींबू का, एक सहजन सरगवा बोलते हैं इसका, इसके साथ साथ सीताफल का, एक जामुन का, इमली का, अगर आप 10 फल अपने घर के आसपास झाड़ लगा देते हैं तो आप समझिए कि आपके परिवार की जो सुरक्षा है, जिसको हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित अगर फल खाना जरूरी है तो आपके परिवार के लिए प्रतिदिन जितना फल मिलना चाहिए आपको सालों साल मिलेगा। आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि बाजार से सफरचंद खरीद सके, लेकिन इन जिन फलों का नाम मैंने आपको बताया अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा, और ख़ास करके मैंने देखा है कि ग्रामीण महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं कि एक लोही की कमी होती है, अगर ऐसे में अगर आप करौंदा का ज़्यादा उपयोग करें तो लोही की कमी समाप्त हो सकती है। साथ ही साथ आंवले को हम अमृत फल बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा, बेल को दिव्य फल बोलते हैं। तो अमृत फल अगर हमारे ऋषि मुनियों ने इनका नाम अमृत फल दिया है तो इसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी तत्व हैं वो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा साहब, आप बताएंगे कि आपका जो फार्म है कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? कुल हमारा जो केंद्रीय बागवानी परीक्षण का फार्म है 900 एकड़ का है। ओहो। और जो हमारा आम है ये मान के चलिए कम से कम 80-90 एकड़ में हमारे पास आम की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें केसर हुआ, चौसा हुआ, लंगड़ा हुआ, दशहरी हुआ, सिंधु हुआ, रत्ना हुआ। इसी तरीके से हमारे पास 30 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां हैं। और इन पौधों को हम कलमी पौधे बना करके किसान भाइयों को देते हैं। और हर साल हमारे फार्म से, केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र से, ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 30 हज़ार कलमी पौधे आम के हम किसान भाइयों को देते हैं। अच्छा साहब, इतना बड़ा क्षेत्र है अपना और इतनी अलग अलग प्रवृत्ति बताई, तो बहुत कृषि वैज्ञानिकों को आपको रखना होगा यहाँ। कितने कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं आपके यहाँ? अभी केंद्र के काम को देखते हुए हमको लेकर के कुल 5 वैज्ञानिक हैं। लेकिन हमारे पास और जो सहायक हैं, टेक्निकल है, माली हैं, लेबर हैं, इन सब लोगों से मिलकर के ही ये सारा कार्य हो रहा है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये केंद्र किसानों के लिए फल पाक साग भाजी, ऐसे फल पाक साग भाजी जिनको की ज़्यादा इनपुट, जिसको बोलते हैं संसाधन की जरूरत नहीं है, बिन पियत खेती करना है। और अभी जैविक खेती की बात चल रही, तो जैविक खेती में अगर आप अपने घर के आसपास अपने परिवार की ज़रूरत के लिए साग भाजी और फल पाक उगाते हैं तो उसमें आपका जो ढोर है, ढोर के जो उसका छानिया खातर है, उसी से अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अगर इन फलों को उगाते हैं तो आपके परिवार जो है प्रतिदिन जितना फल चाहिए वो आप अपने लगाए हुए पौधों से ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ साग भाजी की भी प्रजातियां हैं, जिसमें कि टमाटर की प्रजाति है थार अनंत, और हमारी कोहड़ू की प्रजाति है थार कवि जो कि बहुत छोटा होता है, और हमारी लौकी की प्रजाति है गोल प्रकार, गोल होती है बिल्कुल, थारौनी है। इसी तरीके से सरगवा में हमारी वैरायटी है थार हर्षा है। जितने मैंने फल बताए हैं इन फलों में हम लोगों ने वैरायटी का विकास किया है। और सबसे खुशी की बात यह है किसान भाई आगे आ रहे हैं। आप समझिए कि हमारे यहाँ जो भी कलमी पौधा तैयार करते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जुलाई के महीने में ख़त्म हो जाता है। इतना लोगों को, किसानों के बीच में ये बागायत केंद्र प्रसिद्ध है। किसके लिए? कलमी पौधे लेना है तो वहीं से लेना है। मुझे खुशी है कि मुझे इस केंद्र पर कार्य करने का अवसर मिला और किसान भाइयों को सेवा करने का भी मौका मिला। अच्छा सिंह साहब, एक बात बताएंगे, आपने जो बताया कि अलग अलग प्रजाति के पौधे आप विकसित करते हैं, तो ये क्या लेबोरेटरी में आप विकसित करते हैं संशोधन करके? किस तरह का इसकी प्रोसेस होती है? नहीं, ये हमारे यहाँ कलमी पौधा तैयार करने का मतलब जो हमारे पास बड़े पौधे हैं प्रजातियों की, और उसके पहले हम क्या करते हैं कि देसी गुठली जो होती है उसको
बैग में, पॉलीथीन बैग में उसको उगा लेते हैं। उसके बाद उगाने के बाद फिर उसमें जिस प्रजाति का हमको पौधा बनाना है उसकी कलम ला करके, जिसको शाख बोलते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं, फिर वो कलमी हो जाता है। आपने बताया कि आम के जो इतने सारे पेड़ है उसको भी पानी जो है वो नेचुरली मिलता है चौमासा का, तो बिना पियत एक अचरज की बात है, इतनी अच्छी आम कैसे आप ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आम लोग कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन मेरा जो अनुभव 20-22 साल से है इस केंद्र पे, मैं ये फल पाक के ऊपर संशोधन का कार्य कर रहा हूँ। आम को भी बिन पियत अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है, बशर्ते कि चौमासा में उसकी देखभाल होनी चाहिए। जैसे उसकी थाले की गुड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद उसमें छानिया खातर 30 से 50 से 60 किलो डालना चाहिए। उसके साथ उसमें जो हमारे यहाँ पोटास और यूरिया है थोड़ी थोड़ी मात्रा वो डालनी चाहिए। इसके साथ साथ नीम की खली है और अड़सिया का खाद है और बायो फर्टिलाइजर जो आता है हमारे पास आजकल, बायो पोटास आ रहा है। मैं एमओपी की बात ना करके बायो पोटास की बात करूंगा, वो डालें। और साथ ही साथ जो चौमासा में उसकी जितनी आप देख रेख कर लेंगे उसी के हिसाब से पौधा जो है आपको आने वाले समय में अच्छी फलत देगा। दूसरी चीज यह है कि जो हमारा थाला होता है उसकी निरंतर गुड़ाई करते रहें, क्योंकि यहाँ जो मैंने देखा है आसपास की जो जमीन है वो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, और गर्मी के महीने में उसमें दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से नमी जो है वो बाहर हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मल्चिंग करिए, पलवार जो उसका थाला है उसके ऊपर धान का पुआल है, मकाई का पुआल है, 20 सेंटीमीटर अगर तय हम बिछा देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी नमी उड़ती नहीं है और लंबे समय तक हमारे पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होती है और उसकी बढ़वार और फलत पे उसका सीधा असर पड़ता है। फार्मरों का कोई जूथ है तो इसका ट्रेनिंग भी देते हो, निदर्शन भी देते हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये मान के चलिए कि हजारों की तादाद में किसान आते हैं, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात तो है ही है, तो यहाँ के किसान आते हैं। तो किसानों को हम, किसी को आप भाषण दें या लेक्चर दें, उससे ज़्यादा जब वो जा कर के फील्ड में, प्रक्षेत्र में देखता है कि यहाँ की ज़मीन ऐसी है, यहाँ पानी नहीं मिलता, फिर भी ये पौधे यहाँ पर अच्छे उग रहे हैं, अच्छी फलत दे रहे हैं, तो उसको विश्वास होता है। फिर उसको हम फील्ड दिखाने के बाद फिर हमारे यहाँ जो सभागार कक्ष में है वहाँ उनको हम उसके बारे में तकनीकी बताते हैं कि ये प्रजाति लगाइए, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसको इस तरीके से करें ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा हो, और किसान भाई उसको करते भी हैं। सिंह साहब, अभी कोई स्पेशल संशोधन चल रहा है विशेष कोई? प्रजाति के बारे में जैसा मैंने बेल के बारे में बताया, वैसे जामुन में 2 प्रजाति है, गोमा प्रियंका, थार क्रांति, इमली, खाटी इमली बोलते हैं ना, खाटी इमली की बरंती है गोमा प्रतीक, और हमारी फालसा की थार प्रगति, हमारी चिरौंजी जिसको हम बोलते हैं चारोली, उसकी थार प्रिया, खिरनी की थार ऋतुराज, महुआ की थार मधु, जबकि हम देखते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्रों में महुआ का बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास नींबू की प्रजाति है थार वैभव, और हमारा सीताफल की वैरायटी है थार अमृत, और कोठा की 2 वैरायटी निकाली हम लोगों ने, ये थार गौरव, थार प्रभा। इसी तरीके से हमारी जो साग भाजी की प्रजातियां हैं, अभी हमने उसमें बालोड़ बोलते हैं ना, बालोड़ में भी हमारी प्रजातियां आ गई हैं, और जिसको काउपी, डोलिकस बीन, इसमें भी हम लोग वो ऐसे साग भाजी पे काम करना चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे, मैं गरीब किसान तो नहीं कहता, लेकिन इन किसानों के पास जिनके पास संसाधन नहीं है, वो ऐसे फलों और सब्जियों की खेती करें जिसमें लागत कम लगे और विपरीत परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आमदनी दे सके, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो सके। जैसे सरगवा की बात करें, सरगवा के देखने जाएं तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। अगर इसका उपयोग करें तो हमारे आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे जामुन को आप जानते हैं कि एंटी डायबिटिक है, शुगर की बीमारी जिसको होती है, अगर उसका उपयोग करें, लेकिन उपयोग करने के लिए कैसे उपयोग करें, बिना इसकी अच्छी जानकारी को किसी को उपयोग नहीं करना चाहिए। जब तक उसका साइंटिफिक वैलिडेशन है, कंसल्ट करने के बाद आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करें, इसको कैसे उपयोग करें। इसी तरीके बिली पत्र का आप जानते हैं, बिली पत्र हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है,
जैसे आपकी चाहे चीनी की बीमारी जिसको शुगर बोलते हैं, हाइपरटेंशन है, और इसको पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो अपने शास्त्र में इसको पेट के लिए रामबाण कहा गया है। खास करके जो कच्चा फल होता है उसको भून करके खाने से पेट से संबंधित कोई भी समस्या समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, बेल का फल, पत्ती, छाल और उसका जो मोर और मूल सब जो है आयुर्वेदिक दवाई बनाने में काम लगता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग आयुर्वेद की तरफ रुझान हो रहा है, तो चाहे जामुन हो, चाहे आंवला हो, चाहे बेल हो, आने वाले समय में ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे संशोधन कार्य होंगे और हमारे लिए ये बहुत ही जीवनदायी, साथ ही साथ हमारी जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने में भी कारगर। कोई इंडिविजुअल फार्मर यानी कि खेडूत है वो भी आपके यहाँ देखने के लिए आ सकता है और ये आपका मार्गदर्शन ले सकता है? बिल्कुल, कोई इंडिविजुअल आए चाहे ग्रुप में फार्मर आए, हमारे यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि फार्मर आएंगे तो उनको विजिट कौन कराने ले जाएगा, और उनके बाद हमारे यहाँ से जो किसान आते हैं उनको खाने की भी व्यवस्था भी हम लोग बेजलपुर से करवा रखते हैं। जो भी चाहे आत्मा का आए, चाहे हमारे यहाँ एक दाहोद में है सदगुरु फाउंडेशन है, NGO से आते हैं, तो वो लोग आते हैं और यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ उनका पूरे प्रक्षेत्र का विजिट कराता हूँ। और मुझे बताने में बड़ा अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र जो है हमारे किसानों के लिए, खास करके गुजरात के किसान जो कि जिनके पास संसाधन की कमी है, और उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। डॉक्टर AK सिंह साहब, भविष्य में कोई नए प्लान सोच के रखे या कोई भविष्य का कोई प्लान संशोधन के बारे में या विस्तरण के बारे में? हाँ, हमारे पास रिसर्च से संबंधित एक तो प्रजातियों को विकास करना है, दूसरा किसानों को टेक्नोलॉजी देना है कि कम लागत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए सघन बागवानी कैसे किया जाए जिससे किसानों को ज़्यादा लाभ हो। दूसरा ट्रेनिंग सिस्टम, आजकल ट्रेनिंग सिस्टम करके 1 हेक्टेयर में 400-500 पौधे रख करके और उनकी हाइट को छोटा रख करके अच्छी क्वालिटी का फल कैसे दिया जाए जिसका एक्सपोर्ट भी हो सके, साथ ही साथ किसानों को बहुत अच्छे लाभ हों। दूसरा, अभी हमारे केंद्र सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके ऊपर भी संशोधन का कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जिससे इसके बारे में किसानों को लाभ दिया जा सके। तो डॉक्टर AK सिंह साहब, आपने केंद्रीय बागायत संशोधन केंद्र के बारे में बहुत रोचक जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, श्रोताओं को। इसके लिए आकाशवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको यहाँ पे 2 शब्द कहने के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી હમણાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. અને આજના કાર્યક્રમમાં આપની સાથે અમો હતા કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલ. हे हे हो आहा जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे 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 धरती नो छे छोरो मनडू एनु भोळू धरती नो छे छोरो मनडू एनु भोळू कथा छे भई कथा છે ખેડૂતોની કથા છે વ્યથા છે ભઈ વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી